India company. Before this, the crown maintained a policy of non-interference. तो ये पहली बार हुआ है. It means after 1600, we all know that AIC was given monopolistic rights. ये आपको पता है. AIC was given monopolistic rights. So this was after a gap of 173 years. After a gap of 173 years, we see what? First time, the interference of British Crown, ठीक है, और British government in the affairs of EIC in India. In the affairs of EIC in India. First time, British Crown is directly interfering in the affairs of East India Company in India. So this event is very important. कि 173 years के बाद पहली बार ये जरूरत क्यों पड़ी? What was the need to interfere in the affairs of East India Company? और इस एक्ट का नाम भी क्या है? Regulating Act. Regulating means what? Regulating the affairs of East India Company. So the purpose to introduce this act was what? What was the basic purpose of introduction of this act? So the basic purpose was regulation, or to regulate the affairs of EIC in India. To regulate the affairs of EIC in India. Basic purpose यही था. To regulate the affairs of East India Company. But again question arises, what was the why suddenly there was a need to regulate? क्यों ऐसा हुआ भाई कि गवर्नमेंट को लगा कि हमें रेगुलेट करने की जरूरत है? Why? What was the reason here? Why the government realized that there is need to regulate? So on one side there is a British government, on other side there is East India Company. East India Company came to India to do trade and commerce. ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए आए, राइट? 1600 के बाद 1757 इज द ईयर, ठीक है. और इस बीच में कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी ओनली. यहां पे कंपनी क्या है? ट्रेडिंग कंपनी. बट द कंपनी इज डूइंग व्हाट? द कंपनी इज ऑब्जर्विंग द इंटायर पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया. ठीक है, कंपनी इज अ ट्रेडिंग कंपनी. द कंपनी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड followed a policy. The policy was policy of trade plus diplomacy. कंपनी ने यही पॉलिसी फॉलो करी ना, ट्रेड प्लस डिप्लोमेसी, एंड वाज ऑब्जर्विंग द एंटायर पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया. ठीक है. एंड कंपनी रियलाइज दैट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, स्पेशली आफ्टर 1707, व्हाट वाज हैपनिंग? देयर वाज अ decline of Mughal power in India, and Mughal power was the central authority. So company realized that a political vacuum has been created. Company ने ये समझ लिया कि a political vacuum has been created and we need to take advantage of this political vacuum. And once we will be established as a political power, as an administrative body, we can maximize our profits or gains. ट्रेडर मर्चेंट हमेशा क्या चाहता है? अपने प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाना. ठीक है. तो कंपनी ने सोचा, कहा कि अगर हम पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं तो वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स. हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. नाउ 1757 इज द ईयर व्हेन द कंपनी फॉट एन इंपॉर्टेंट बैटल इन बंगाल, एंड बंगाल एट दैट टाइम वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंसेस इन इंडिया. ठीक है, इकोनॉमिक बैकबोन था बंगाल. तो कंपनी ने सबसे इंपॉर्टेंट एक बैटल बंगाल में जीता, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ पलासी, एंड दैट वाज फॉट ऑन 23rd June 1757. ठीक है. और बंगाल पे कंट्रोल स्टैब्लिश किया. बट ये फुल पॉलिटिकल कंट्रोल, फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं था, बिकॉज देयर वाज अ पपेट नवाब. गॉट इट? इसके बाद क्या होता है? 1764 अनदर बैटल वाज फॉट, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर. द डेट वाज 22nd October 1764. और बैटल के बक्सर ने क्या किया? इट कंफर्म्ड द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ पलासी. इसने कंफर्म कर दिया विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पलासी. पलासी के बैटल के विक्ट्री को कंफर्म कर दिया. गॉट इट? एंड आफ्टर दिस इन 1765 company got an important administrative rights. You all are familiar about this. By this treaty of Allahabad,
दिस वाज बेसिकली अ सेट ऑफ टू ट्रीटीज, ठीक है, जो साइन करी गई थी, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये डिटेल तो आपको पता है। तो कंपनी गॉट हियर व्हाट, दीवानी राइट्स, एंड दीवानी राइट्स मींस व्हाट, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, ये भी आपको पता है। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ व्हाट, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, कंपनी गॉट लैंड रेवेन्यू collection rates. Now the company role has been changed. Treaty of Allahabad is concluded in which year? The answer is 1765. And after 1765, we see that the company role has been changed. Now the company is only trading body or administrative body also? Administrative body also. It means now this trading company was not only a trading company, but it assumed a new role, and this new role is the role of administrative body. The company assumed the role of administrative body also. Now it was associated with the task of administration. Now the first model of administration that the company introduced in India. अब आप रिलेट कर पा रहे हो ना पुरानी कहानी से। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज, इंडिया में किस कॉन्टेक्स्ट में, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, और वो क्या था, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। And this dual system of governance that was continued from 1765 to 1772. And it was introduced by whom? It was introduced by Clive. You all know this. Dual system of governance was introduced by Clive. And this system was ended by whom? So this system was ended by Warren Hastings. इस system को किसने खत्म किया था? Warren Hastings ने, ठीक है ना? You all know this. We all know this. This system continued for a period of about 7 years. ये system कब तक रहा? It was continued for a period of about 7 years. और इन 7 years में क्या हुआ? एक important reference है famine का, and that was the Great Famine of 1770. याद आया कुछ? There was a Great Famine of 1770. Some historians write that about 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड, बट ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन लगता है कि बड़ा चढ़ा के बताया, ठीक है ना, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड। तो दिस इज व्हाट, ओके, इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी डिड व्हाट, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी राइट्स अपने पास रख ली और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसके शोल्डर्स पे डाल दी? कंपनी डिड व्हाट, टू कॉल द राइट्स ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। पैसा पैसा अपने पास आएगा, ठीक है, हम डिसाइड करेंगे खर्च करना है, बट जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पे डाल दी? ओके, तो वी ऑल नो, ठीक है। नाउ देयर वाज अ सिस्टम इन विच देयर वाज अ, ओके, नवाब, डेपुटी नवाब, निजाम, नायब निजाम, ये सारा सिस्टम आपको मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। नाउ द कंपनी वाज अ कंपनी, नाउ द कंपनी वाज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, and most surprisingly this administrative body was having rights without responsibilities. This administrative body was having rights without responsibilities, and here rights are related to the collection of land revenue. It means इनकमिंग इनके पास है, पैसा इनके पास आ रहा है, बट ठीक है, खर्च नहीं करना चाह रहे, ठीक है। They are using that revenue to purchase the raw materials from India, and in this way they are maximizing their benefits or the gains. Plus this is also the age of plunder or loot. Yes, this is also the age of plunder and loot. Plunder और loot कैसे है? वहाँ के लोकल मार्केट्स पे आपने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, यू हैव मोनोपोलाइज्ड द लोकल मार्केट्स, ठीक है, लोकल ट्रेडर्स से जबरदस्ती सस्ते में उनका रॉ मटेरियल्स खरीदा, ठीक है, और आपने एक आर्बिट्ररी मैकेनिज्म बना लिया, दूसरे कंपटीटर्स, राइवल्स को मार्केट से बाहर कर दिया आपने। सो दिस वाज द एंटायर स्ट्रक्चर एंड द कंपनी वाज इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट्स और द गेन्स। कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही थी लगातार, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई ना? दिस इज वन पिक्चर दैट व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 1757। 1757 के बाद करप्शन कंपनी में क्या होगा? करप्शन वाज एट इट्स हाइट, एक्सीलेंट हाइट्स, यानी 1757 के बाद, 1757 के बाद पर्सनल गिफ्ट, ब्राइब, करप्शन, ये लगातार बढ़ता चला जाएगा और ये करप्शन बढ़ता चला जाएगा। 1765, 1772, 1775, कंपनी वाज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अगर कंपनी में करप्शन बढ़ रहा है
तो बताओ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी के ऑफिसर्स को प्रॉफिट हो रहा है? जैसे सिविल सर्विसेज में अगर करप्शन को चेक नहीं किया गया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा कि सिविल सर्वेंट्स का बेनामी प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ब्लैक मनी बढ़ेगा? ऑब्वियसली। ठीक है, अगर करप्शन ज्यादा है तो करप्शन ज्यादा होने का मतलब है कि सीधा सीधा ये रेवेन्यूज को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। वही कॉन्सेप्ट उस समय ले आओ, कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना, कंपनी का भी अपना एक बैलेंस शीट होता होगा, कंपनी को भी प्रॉफिट लॉस दिखलाना होता था। दूसरी चीज, एक और बात था, दैट मोनोपोलिस्टिक राइट्स ऑफ ट्रेड वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। केवल और केवल ट्रेड एंड कॉमर्स कौन कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बताओ, अगर कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, ठीक है, चोरी चोरी चुपके अपना वाला ट्रेड करेंगे, कुछ सामान ले आएंगे, ले जाएंगे, बेच देंगे। जैसे होता है कुछ लोग इधर दुबई वगैरह जाते तो दोस्त कहते यार जा रहे हो थोड़ा गोल्ड लेते आना, सस्ता पड़ जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? वो जबरदस्ती हनी सिंह की तरह 8-10 नेकलेस वेकलेस पहन के निकलता है वहां से। ठीक है, तो देखो क्या है, इस बात को समझो कि कंपनी के ऑफिसर्स दे वर इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्रेड, और प्राइवेट ट्रेड क्या था? प्रोहिबिटेड था। प्राइवेट ट्रेड प्रोहिबिटेड था, केवल ट्रेड कौन करेगा? कंपनी। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर हो, गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, और क्लास में बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा के कह रहे हो मेरे घर में आओ मैं कोचिंग दूंगा तुमको, अलग से पैसा ले रहे हो। तो बताओ प्राइवेट ट्यूशन, ठीक है, वहां पे बैन होना चाहिए कि नहीं? बैन होना चाहिए, क्योंकि फिर टीचर क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाएगा, वो प्राइवेट ट्यूशन में ठीक से पढ़ाएगा। तो बताओ ये करप्शन है कि नहीं? करप्शन है। उसी पर्सपेक्टिव में आपने देखो, कंपनी वॉज गिवन द राइट टू ट्रेड, नाउ द कंपनी ऑफिसर्स वर डूइंग प्राइवेट ट्रेड। तो इस प्राइवेट ट्रेड की वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था, और ब्लैक मनी किसके पास बढ़ रहा था? कंपनी के ऑफिसर्स के पास। क्लाइव के पास ब्लैक मनी आ रहा था, सिराजुद्दौला को नवाब से हटाया उसने, मीर जाफर को लेके आया, तो उसने गिफ्ट लिए, ब्राइब्स लिए, है ना, कंपनी के सैनिकों को गिफ्ट दिया गया, ब्राइब्स दिया गया। तो दिस ऑल वाज हैपनिंग। मतलब ये एक बड़ा ही एक सरप्राइजिंग चीज है कि एक तरफ जो कंपनी के ईआईसी के अकाउंट्स थे, जिसमें प्रॉफिट और लॉस वाला जो अकाउंट होता है, ठीक है, वो अकाउंट क्या देख रहा था कि द प्रॉफिट वाज डिक्लाइनिंग एंड द कंपनी वाज सफरिंग लॉसेस। कंपनी को क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कंपनीज ऑफिशियल्स, ईआईसी ऑफिशियल्स, क्लाइव, इन सब की इनकम क्या होती चली जा रही है? बढ़ती जा रही है। एंड दिस इनकम इज दे आर गेटिंग दिस enormous profit through corruption, bribery। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज एज ऑफ प्लंडर। पूरा का पूरा एज क्या कहलाता है? एज ऑफ प्लंडर कहलाता है। गॉट इट? ये चीजें हैं। अच्छा, कंपनी को जब लॉस होगा तो कंपनी सीधे किसके पास जाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, कि भाई कुछ लोन दे दो। ठीक है, सो नाउ इन 1770 द कंपनी वाज facing losses, economic losses, and now it will ask the British government, okay, for loans। ठीक है ना, to manage the economic affairs of the ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि भाई हमें लोन चाहिए जिससे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज कर सके। अच्छा, कंपनी का बैंकरप्सी, ये पूरे इंग्लैंड में सबसे टॉप न्यूज होगा कि नहीं? होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आएगा, ईआईसी ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी इन इंडिया। अच्छा, ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग हैं, अब वो सोच में पड़ जाएंगे, कहेंगे ईआईसी घाटे में जा रही है, और ईआईसी वाज अ जॉइंट वेंचर कंपनी, कंपनी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनीज लॉस मींस लॉस ऑफ शेयर होल्डर्स। ध्यान से समझना इस बात को, कंपनी का लॉस, ईआईसी का लॉस, किसका लॉस है? ईआईसी वाज अ जेवीसी, जॉइंट वेंचर कंपनी, इट वाज अ कंपनी ऑफ शेयर होल्डर्स। सो द इफ कंपनी विल फेस लॉस, इट इज द लॉस फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर्स कौन थे? ब्रिटेन के लोग थे। गवर्नमेंट ने कहा तो देखो, प्राइवेट ट्रेड नहीं करना, तुम अपना पैसा कंपनी में लगा दो एंड कंपनी विल डू ट्रेड, दैट इज द ऑर्गेनाइज ट्रेड, और ऐसे ब्रिटेन की इकोनॉमी को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो न्यूज़पेपर में आया, ब्रिटेन के लोग परेशान, कहा कंपनी को लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है? तो फिर कुछ लोग पहुंच गए लॉर्ड क्लाइव के घर के बाहर, कहा अरे यार लॉर्ड क्लाइव का घर, ये तो 3 BHK था, अभी तो महल दिख रहा है, ये ताजमहल जैसा दिख रहा है। ठीक है, इतना पैसा आया कहाँ से क्लाइव के पास? क्लाइव के पास पहले ऑल्टो कार थी, ठीक है, और इसने 10-10 डिफेंडर खड़ी कर रखी है। इतना पैसा कहाँ से क्लाइव के पास आया? फिर लोग निकल जाएंगे दूसरे ईआईसी ऑफिशियल्स के घर पे, ठीक है, किसी न किसी बहाने से चाय वाय पी के आएंगे, घर के अंदर घुसेंगे। ठीक है, ध्यान रखना,
आगे सबको चाय पे नहीं बुलाना है घर पे, ठीक है। फिर बाहर आके कहेंगे भाई इंटीरियर डेकोरेशन घर बहुत ज्यादा पैसा कमाया इन लोगों ने। ये पैसा आया कहाँ से? इंडिया से ही तो आया है, करप्शन से ही तो आया है, ठीक है। ये पैसा कैसे आ रहा है? करप्शन से। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है, ठीक है, उसके पास तो खूब पैसा है, ठीक है। तो सब लोग चाहेंगे ब्रिटेन के लोग कि हमारे बच्चे भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने चले जाएं इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। जैसे आजकल के पेरेंट्स चाहे बच्चा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कितने माँ बाप सोचते हैं देश की सेवा करेगा, ठीक है। तो क्या है कि लोग सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे चला जाए, बट ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था? क्योंकि प्रिविलेजेस थे कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे, वो सीधे सीधे सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते थे। अब बताओ आईएएस एग्जाम खत्म करके ऐसा कर दिया जाए कि सीधे सीधे अपॉइंट किया जाएगा, तो लोग किसको अपॉइंट करेंगे? नेपोटिज्म होगा, ठीक है। चाचा मामा फूफा के लड़के को लेके आएंगे या लड़की को लेके आएंगे, या फिर जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको लेके आएंगे। तो यही वाला सिस्टम था। कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर गिवन द प्रिविलेज, they could directly appoint the civil servants in India. There was nepotism, there was corruption there also, because that was one of the most lucrative services in India. The salaries that were offered to the administrators in India was one of the highest salaries that was offered in any country of the world. पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा थी। अब ब्रिटेन के लोगों का दिमाग खराब हुआ। कहा एक तो कंपनी को आपने दे दिया मोनोपोलिस्टिक राइट्स 1600 के बाद, इट मीन्स केवल कंपनी ट्रेड करेगी, एंड इंडिविजुअल ट्रेड और प्राइवेट ट्रेड को आपने क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इट मीन्स वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर डाल दी। दूसरा, अभी आप क्या कह रहे हो? अभी आप कह रहे हो कि कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ये लॉस किसके लिए लॉस है? शेयर होल्डर्स के लिए लॉस है। अगर इतनी बुरी हालत है कंपनी की, तो कंपनी को बेल आउट पैकेज देने की जगह क्या करो? कंपनी का मोनोपोलिस्टिक राइट्स ही खत्म कर दो। This is the demand from the people in Britain. They are demanding that the company's monopolistic rights should be ended. Okay, private trade should be allowed. The British people, the British traders and merchants should get the opportunity to participate in the lucrative trade in Britain. Britain के जो traders, merchants हैं, इनको ब्रिटेन के ट्रेड एंड कॉमर्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन होनी चाहिए। एंड नाउ दे वर just with placard, the people were moving around in the streets asking the British government पे प्रेशर डाल रहे थे कि you will have to end the monopolistic rights of East India Company. अच्छा, ये डिमांड अभी अभी बनी है कि बहुत पहले से डिमांड चली आ रही है? लॉजिकली बहुत पहले से चली आ रही थी। कंपनीज मोनोपोलिस्टिक राइट शुड बी इंडेड, ये डिमांड तो बहुत पहले से चली आ रही थी। बट अभी इस डिमांड ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। क्यों ले लिया? लोगों ने कहा वी आर ऑलरेडी डिमांडिंग कंपनीज मोनोपोलिस्टिक राइट्स इज इंडेड, कंपनी इज फेसिंग फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। और दूसरी चीज, व्हाट कंपनी इज डूइंग, whatever the company's administrative administration is doing in India in the form of dual system of governance, ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि 1765 से 1772 के बीच जो कुछ भी इंडिया में हुआ, दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट वायलेंस एंड कॉर्पोरेट करप्शन। इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान सकते, ठीक है। तो इससे तो ब्रिटेन का इमेज खराब हो रहा है। कंपनी का मोनोपोलिस्टिक राइट्स खत्म करो और हम सबको जाने दो। अच्छा, इससे खुश नहीं होना है कि ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है। वो चाहते थे कि फायदे में हमें हिस्सा मिले, ठीक है, डायरेक्टली हम और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है। लोग कह रहे कंपनी की मोनोपोलिस्टिक राइट्स खत्म करो, और कंपनी की मोनोपोलिस्टिक राइट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं खत्म कर सकती, बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट भी था, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रियंस भी थे, और कंपनी उनके घर क्या भिजवाती थी, ठीक है, समय समय पे ब्रीफ केस जाता रहता था, ठीक है। तो उनको इनकम होती रहती थी, कंपनी की मोनोपोलिस्टिक राइट्स बनी हुई थी। मेरी बात समझो, ये पूरा का पूरा करप्शन का चेन है। यू कैन नॉट डिनाई दैट द पार्लियामेंट्स वर नॉट गेटिंग सम शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्लैक मनी उनके यहाँ पहुंच जाता था, और वो पार्लियामेंट में जोर शोर से कहते थे नहीं नहीं, कंपनी की पार्लियामेंट्री, कंपनी की राइट्स जो है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक राइट्स, दे शुड नॉट बी इंडेड अवे। फिर अगले दिन एक अटैची और पहुंच जाता था कि थोड़ा और जोर से बोलो, ठीक है, डेसिबल और बढ़ाओ तुम, ठीक है। तो अगले दिन से और जोर से पार्लियामेंट्रियन चिल्लाता था कि कंपनी की मोनोपोलिस्टिक राइट्स खत्म नहीं की जानी चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर, गवर्नमेंट करे तो क्या करे? गवर्नमेंट ने क्या किया? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड व्हाट?
British government realized that there is immense pressure from the British people also. British people also. British people are demanding that monopolistic rights should be ended. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा खत्म तो नहीं कर सकते यार, जिसका नमक खाया उसके साथ नमक हलाली नहीं करेंगे, ठीक है, एक झटके में मोनोपोलिस्टिक राइट्स को नहीं खत्म कर सकते। तो लोगों को खुश करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक बिल लेजिस्लेट किया, एक्ट बनाया, और द नेम ऑफ दिस एक्ट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एंड नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम कंपनी का कान खींचने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, अब कंपनी को मनमाने तरीके से काम करने की छूट नहीं मिलेगी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगा, कंपनी को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करेगी। ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया, लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, क्योंकि 1773 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी उस घोड़े की तरह थी जिसकी लगाम सरकार के हाथ में नहीं थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कहा हमने लगाम पहना दिया है, अब उसकी लगाम किसके हाथ में है ना, हमारे हाथ में। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो लोगों का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। नाउ व्हाट वाज द प्रोविजंस इन दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजंस क्या क्या है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, जैसे देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं होम एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑन अदर साइड आई एम राइटिंग हियर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, होम एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। होम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ठीक है, सो देयर वर टू बॉडीज हियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ JVC, joint venture company. Joint venture company means it was a company of shareholders. It was a company of shareholders. ये shareholders की company थी. It was a JVC. It was a company of shareholders. ठीक है, अब देखो क्या था, जो शेयर एक बॉडी थी, देयर आर टू बॉडीज हियर, ठीक है, और ये सभी शेयर होल्डर से ही जुड़ी हुई बॉडीज थी दोनों। वन वाज कॉल्ड COP and the second was called COD. One was called COP, that is Court of Proprietors, and the second is COD, Court of Directors. One is called Court of Proprietors and the second is called Court of Directors. Court of Directors. एक क्या हो गया, Court of Proprietor and the second is Court of Director. ठीक है ना, ये पॉइंट है। ओके, अब देखो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जैसे शेयर होल्डर तो कोई हो सकता है, जैसे आजकल लोग बहुत सारा शेयर वेयर का काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग 10-20 रुपए के भी शेयर खरीद लेते हैं, उसी से सीखते रहते हैं, ठीक है, बट अगर आप 10-20 रुपए के शेयर रखोगे तो कंपनी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हो रही है तो आपको बुलाया जाएगा, अरे 20 रुपए वाले शेयर वाले भाई साहब आइए डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं होगा। तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, मेरी बात समझो, कि जैसे कंपनी का शेयर है, किसी के पास 10 रुपए के शेयर है, किसी के पास 100 रुपए के हैं, किसी के पास 500 रुपए के हैं, किसी के पास 1000 के शेयर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, जैसे मान लो कि हमने एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाया, फॉर एग्जाम्पल कि हम ये कह रहे हैं कि दोज पीपल हु आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ 100 पाउंड्स, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो मालिक होता है, मेरी बात समझ गया ना, कि अगर किसी के पास 100 पाउंड्स, ठीक है, एटलीस्ट 100 पाउंड्स का शेयर है, तो उसको हम मानेंगे कि वो मेंबर है किसका, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर का, 100 पाउंड का शेयर है। गॉट इट। अगर आपके पास 80 पाउंड का शेयर है, 60 पाउंड 40 पाउंड खरीद सकते हो, बट यू विल नॉट बी द मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हु विल रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सभी लोग तो नहीं एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते ना, सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स विल बी chosen for that purpose, जो एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का देख सके, ठीक है ना। सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 24 people who was looking after the administration of this country,
सो दिस कंपनी 24 लोगों का एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 24. दिस ग्रुप ऑफ 24 डायरेक्टर्स इज नोन एज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ये लोग क्या करते थे, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे. दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, द ग्रुप ऑफ 24 पर्सन. तो देखो, पहली चीज, ये जो डायरेक्टर होंगे क्या वो कंपनी के प्रोपराइटर होंगे कि नहीं? यस, वो कंपनी के प्रोपराइटर भी होंगे. यानी कि जो कंपनी का प्रोपराइटर है वो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ सकता है. लेकिन डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के लिए एक अलग क्राइटेरिया थी, और वो क्राइटेरिया क्या थी? अगर आप डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपके पास मिनिमम 500 पाउंड्स का शेयर होना चाहिए, तब आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, इलेक्शन लड़ सकते हो. ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. 100 पाउंड, 500 पाउंड नेवर विल बी आस्क्ड टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, कि सपोज वी ऑल आर द प्रोपराइटर्स ऑफ द कंपनी, और इनमें से बड़े शेयर्स किसके पास हैं? आकाश के पास हैं, ठीक है, और अर्पिता के पास है. तो आकाश और अर्पिता के पास अगर 500 पाउंड से ज्यादा के शेयर है तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ पाएंगे. अगर मेरे पास 400 पाउंड का है, 300 पाउंड का है, तो मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बेसिकली वो भी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर का मेंबर है, बट वो इलेक्शन लड़ रहा है. अच्छा, उसको डायरेक्टर बनाने के लिए उस इलेक्शन में वोट कौन करेगा? तो ये लोग करेंगे. दे विल डिसाइड दैट हु विल बी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. मेरी बात समझ गया ना? तो all important administrative decisions in the company was taken by the court of director. That is a group of 24 directors. Even the administrators, civil servants in India, ठीक है, इंपीरियल सर्विसेज में जो लोग, जैसे सिविल सर्विसेज की जो हम बात करते हैं, द मेंबर्स वेर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ सीओडी. इनके पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था कि वो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करके भेज सकते. समझ लीजिए, नो एग्जामिनेशन. They were having the exclusive privilege of selecting the administrators in India. So obviously, this office is the most important office, Court of Director. There were total 24 directors. This was the company's administration, home administration. ये लोग कहाँ रह रहे हैं? घर या लंदन में ही तो रह रहेंगे ना, ब्रिटेन में ही रहेंगे ना. Members of Court of Directors and members of Court of Proprietor. Now let's come to here. Administration in India. एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में क्या है कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज. यू ऑल नो द नेम. तीनों प्रेसिडेंसीज का नाम आपको पता है कौन कौन सी हैं? वन इज बंगाल प्रेसिडेंसी, द सेकंड वाज बॉम्बे, एंड द थर्ड इज मद्रास. बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. इस टॉपिक को जितना बेहतर समझ सकते हो समझो, ठीक है. तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे. अच्छा, प्रेसिडेंसी इज द सेंटर फ्रॉम वेयर द नियर बाई टेरिटरीज और एरियाज आर गवर्न. मेरी बात समझ गया ना? Presidencies are the center from which the nearby territories or areas were governed. तो बताओ, जहां प्रेसिडेंसी थी पहले, वहां तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज होंगी. फैक्ट्रीज का मतलब गोडाउन्स, ये आपको पता है. फैक्ट्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं. तो पहले उन्होंने क्या किया था, अपने ट्रेड सेटलमेंट्स बनाए थे. दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज लाइक दे वर लाइक गोडाउन्स, ठीक है. और ग्रेजुअली वहां पे धीरे धीरे उनका सेटलमेंट बढ़ता चला गया, एंड दैट बिकम सेंटर. उसको उन्होंने हासिल किया, एंड दैट वाज द प्रेसिडेंसी. तो देखो, पहले यहाँ जो फैक्ट्रीज थी, तो फैक्ट्रीज को जो हेड करता था, दैट ऑफिसर वाज कॉल्ड फैक्टर. उसको क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे. बट धीरे धीरे जब यहाँ पे प्रेसिडेंसीज डेवलप हो गई, तो प्रेसिडेंसीज वो सेंटर है जहां से नियर बाई टेरिटरीज को आप गवर्न कर रहे हो. जैसे मान लो बंगाल और इसके आसपास के टेरिटरीज को कहां से गवर्न किया जाएगा? बॉम्बे के आसपास की टेरिटरीज को, वेस्टर्न इंडिया को कहां से गवर्न करोगे? बॉम्बे से. साउथ इंडिया को कहां से गवर्न करोगे? मद्रास से. तो इसके लिए एक ऑफिसर रहना चाहिए कि नहीं? वो ऑफिसर क्या है? गवर्नर. यानी वही जो ऑफिसर फैक्टर था, वही ऑफिसर अब क्या हो जाएगा? गवर्नर. ठीक है ना? सो हियर वी सी इन बंगाल देयर वाज अ गवर्नर. बंगाल में भी एक गवर्नर था, ठीक है. बॉम्बे में भी एक गवर्नर था, और मद्रास में भी एक गवर्नर था, जो गवर्न करते थे इन प्रेसिडेंसीज को. हु आर गवर्निंग दीज प्रेसिडेंसीज. और ये रिपोर्टिंग ऑफिसर इनका कौन है? किसको रिपोर्ट करेंगे? बंगाल गवर्नर विल रिपोर्ट टू COD. Bombay governor will report to COD. Madras governor will report to COD. Because now administration is done by company. और कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कौन ले रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे जो गवर्नर्स हैं, इनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। दिस वाज द स्ट्रक्चर बिफोर 1757। 1757 के पहले यही स्ट्रक्चर है, सॉरी 1773। दिस वाज द स्ट्रक्चर बिफोर 1773, रेगुलेटिंग एक्ट के पहले। यस प्लीज। ऑब्वियसली वो आते जाते रहेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज वाई, दैट इज वाई, हाँ। नहीं नहीं नहीं, दैट मतलब और भी तो चैनल्स थे ना कम्युनिकेशन के, और 24 डायरेक्टर्स थे, तो ऐसा है नहीं कि वो फ्रिक्वेंटली विजिट नहीं करेंगे। दे विल डू फ्रिक्वेंटली विजिट, बट हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? होम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कंपनी इज रजिस्टर्ड इन लंदन ना, तो हमने किस में रखा? होम एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे सारा का सारा काम कौन देख रहा है? गवर्नर। गवर्नर किसको रिपोर्ट कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। और ये स्ट्रक्चर कब से है? ये स्ट्रक्चर कमोबेश मान के चलो, मतलब 1765 के बाद 1773, इस बीच में यही स्ट्रक्चर है। गॉट इट? अब हमें ये समझना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इसमें क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया। व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस that were introduced by Regulating Act 1773। Regulating Act 1773 क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, ये हमें समझना है। तो देखो अगेन यहाँ पे हम दो पार्ट में स्ट्रक्चर बनाएंगे। हियर वी विल राइट चेंजेस इन होम गवर्नमेंट, चेंजेस इन होम गवर्नमेंट, ठीक है। एंड हियर वी विल राइट चेंजेस इन, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, क्या चेंजेस हुए। और बहुत आसान है इस चेंज को समझना। देखो अब होम गवर्नमेंट में आ जाओ, दो बॉडीज है ना, देयर आर टू बॉडीज, वन इज व्हाट? सीओपी, एंड द सेकंड इज व्हाट? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या किया गया है यहाँ? क्वालिफिकेशन वाज रेज्ड, राइट दिस पॉइंट, qualification was raised, qualification was raised, and what does it mean? कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन पहले थी, उस क्वालिफिकेशन को बढ़ा दी गई। क्वालिफिकेशन का मतलब ज्यादा शेयर, ज्यादा पैसे का शेयर आपके पास होना चाहिए। तो जैसे पहले 100 पाउंड था तो आप कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के मेंबर बन जाते थे, लेकिन अब आपके पास कितना होना चाहिए? 1000 पाउंड होना चाहिए। मेरी बात समझ गया ना? सीधे कितना बढ़ा दिया? 10 टाइम्स बढ़ा दिया। 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 1000 पाउंड का शेयर है, तब आप कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के मेंबर है। बहुत सारे प्रोपराइटर बाहर हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। अच्छा जब भीड़ कम हो जाएगी तो डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो जाएगा कि नहीं? लॉजिकली सोचो, प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों था? जैसे देखो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, कि सब अपने अपने बॉस होते हैं। मेरी बात समझ गया ना? फिर बॉस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है? हिसाब ठीक करना पड़ेगा ना, तो वो ऐसे होगा 100 पाउंड, 1000 पाउंड। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में इसकी भी क्वालिफिकेशन को रेज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड नाउ द क्वालिफिकेशन इज 2000 पाउंड, और बढ़ा दिया हम, बताओ 4 टाइम्स कर दिया। और ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, नंबर डज नॉट मैटर। मेरी बात समझ गया ना? भूल जाओ तो कोई बात नहीं, भूल जाओ तो खुश हो जाओ, भूल गया मैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इतना याद रखना है, क्वालिफिकेशन वॉज रेज्ड, ठीक है। इससे क्या होगा? ये क्यों किया गया? अब इसका आंसर क्या है आपके पास? टू इंश्योर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दिस वाज द पर्पस। तो यहां लिख सकते हो व्हाई वाज इट डन, सो द पर्पस इज इंश्योरिंग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंश्योरिंग इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, फॉर दिस वाज डन, ठीक है ना, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। दूसरी चीज ये कहा गया कि अच्छा इन दोनों बॉडीज में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सीओपी और सीओडी, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? COD is more important. Now, that says that will maintain, British Parliament will directly maintain, will directly maintain administrative control over the affairs of COD. British Parliament will maintain
British Parliament will directly maintain administrative control over the affairs of COD. COD वही घोड़ा है जिसको क्या कर दिया, अब लगाम लगा दिया किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। मेरी बात समझ गया ना? अब आप समझ गए, दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट। इसके पहले पार्लियामेंट को कोई लेना देना नहीं था। अब पार्लियामेंट कह रही है भाई, पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी किसको, सीओडी को। लगाम लगा दिया हमने। बट इसमें एक प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर में, जो बाद में लोग हंगामा करेंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे लगाम तो लगा दिया लेकिन घुड़सवार कौन है। ठीक है, लगाम लगा दिया, घुड़सवार तो होना चाहिए, हु विल कंट्रोल। ये तो अथॉरिटी आपने बनाई ही नहीं। तो रेगुलेटिंग इट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? द गवर्नमेंट सेज दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट विल रेगुलेट सीओडी, बट द लिमिटेशन इज इट डज नॉट मेक इट क्लियर दैट हु विल रेगुलेट, हाउ इट विल बी रेगुलेटेड। घुड़सवार कौन है, घुड़सवार को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है कि नहीं, यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो राइट, यहीं पे लिख लो, वीकनेस और लिमिटेशन। वीकनेस और लिमिटेशन, व्हाट इज द वीकनेस और लिमिटेशन, दिस पॉइंट, वीकनेस और लिमिटेशन। ठीक है, राइट। पॉइंट 1, it does not make it clear that how British Parliament, it does not make it clear that how British Parliament will maintain control over the affairs of COD. सिर्फ ये कह रहा है कि we will maintain control, but how, it's not clear, right? It does not make it clear that how British Parliament will maintain controls over the affairs of COD. How British Parliament will maintain control over the affairs of the COD. ये तो क्लियर हुआ नहीं, समझ गए मेरी बात को? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। It means, is there any administrative structure in British Parliament who will control COD? No. Okay, so right, next point, right? No administrative structure was provided in British Parliament that will control COD. No administrative structure was provided in British Parliament that will control COD. No administrative structure was provided in British Parliament that will control COD. Right, next point. Right, people will criticize this part. Later, 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 people will criticize this part. ये आपको समझ में आया पूरा का पूरा पार्ट? Is it clear? अब आपको समझ में आ गया रेगुलेटिंग का मतलब क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट विल रेगुलेट सीओडी। ठीक है ना? क्वालिफिकेशंस वर रेज्ड। इतनी बात याद रखनी है, ये नहीं कि सारा का सारा रट्टा मारने लगे, नहीं। हम तो फैक्ट्स को लिखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स को हम कोरिलेट कर सकें। बट इसमें क्या है कि जो बात याद रखनी है उसको क्या करना, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। क्या हाईलाइट करना है? रेजिंग द क्वालिफिकेशन। और क्या हाईलाइट करना है? ब्रिटिश पार्लियामेंट विल मेंटेन कंट्रोल ओवर सीएडी। और क्या हाईलाइट करना है? नो स्ट्रक्चर वाज प्रोवाइडेड कि हाउ इट विल मेंटेन कंट्रोल। इतनी सी चीजें। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज हैं। वन इज बंगाल, सेकेंड इज मद्रास एंड द थर्ड इज बॉम्बे। बंगाल का भी बॉस कौन है? गवर्नर। मद्रास का भी बॉस कौन है? गवर्नर। बॉम्बे का भी बॉस कौन है? गवर्नर। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि विपिन और आकाश दोनों डेप्यूटी एसपी। विपिन ने कहा दिस इज माय ऑर्डर, फॉलो दिस। आकाश विल से हु आर यू टू गिव मी ऑर्डर? तुम कौन होते हो ऑर्डर देने वाले मुझे? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? होगा कि नहीं प्रॉब्लम? छोटी सी बात है, समझो इस बात को। एंड सपोज शताक्षी इज आईपीएस और इन्होंने ऑर्डर दिया, तो क्वेश्चन करोगे? नहीं क्वेश्चन करोगे ना। मेरी बात समझ गया ना? तो मामला यहाँ यही है, ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर, ये अपने एरिया का बॉस, ये अपने एरिया का बॉस, ये अपने एरिया का बॉस। ये किसको रिपोर्ट कर रहा है? ये भी सीओडी को रिपोर्ट कर रहा है, ये भी सीओडी को रिपोर्ट कर रहा है, ये भी सीओडी को रिपोर्ट कर रहा है। इन सभी का रिपोर्टिंग ऑफिसर तो यही है, सीओडी। ठीक है, अब बताओ यहाँ डिसीजन लेने में दिक्कत होगी कि नहीं? ठीक है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर है, बिना बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर से पूछे मराठों से भिड़ जाए, फिर बंगाल वाला उसको फोन करेगा कि यार क्या बेवकूफी करते हो, मराठों से भिड़ गए तुम।
अभी टाइम है भिड़ने का। फिर बॉम्बे वाला कहेगा अपना अपना ध्यान बंगाल तक ही रख, मैं इधर क्या कर रहा हूँ ये मेरी मर्जी, मैं अप्रूवल ले लूंगा सीओडी से। छोटा सा एग्जांपल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये लोग अलग अलग प्रेसिडेंसीज में, देखो वॉर भी लड़ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन सब में सबका ओपिनियन एक जैसा हो ये बड़ा जरूरी है। यानी इस स्ट्रक्चर में एक लूपहोल है, वीकनेस है, और वो वीकनेस क्या है कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, कंपनी में बैड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको भी रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है, ठीक है। तो राइट दिस, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट दिस, गवर्नर 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 सबका बॉस हो गया सीओडी, राइट दिस प्रॉब्लम्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, या इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, चैलेंजेस है। और ऐसे पार्ट डिवाइड करके लिख रहे हो ना आप, चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसी पार्ट में लिखना है। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ बट हमेशा स्ट्रक्चर में लिखो, तो दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम राइटिंग बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास। चैप्टर थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ऐसे कहानी की तरह समझेंगे हम, तब सारी चीजें याद होंगी। अब देखो इसमें से किसी एक को बॉस बनाना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। बॉस किसको बनाया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी कौन है, बंगाल, तो बंगाल गवर्नर वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, गवर्नर जनरल। बॉम्बे वाला क्या रह गया, गवर्नर ही रह गया। मद्रास वाला क्या रह गया, गवर्नर रह गया, ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। एंड इट वॉज गिविंग सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सब ओवर द अदर टू प्रेसिडेंसीज, बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज पे इसको क्या दे दिया गया, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, मतलब इसका सींग लगा दिया गया। गवर्नर क्या हो गया, गवर्नर जनरल, बाकी दोनों के सींग नहीं है, मेरी बात समझ गया ना, तो गवर्नर बिकेम गवर्नर जनरल। ओके, सो राइट दिस सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, नाउ इट वाज गिविंग सुपरवाइजिंग अथॉरिटी आल्सो, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, ठीक है, इट वाज गिवन सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी भी मिल गया। ओके, तो ऐसे कोशिश करी गई कि थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, लेकिन अब बताओ जहां ज्यादा पावर दिया जाता है वहां पे सिस्टम भी बनाना पड़ेगा ना। तो गवर्नर जनरल के साथ साथ एक नया सिस्टम आता है, और वो क्या है, गवर्नर जनरल की जो ऑफिस है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल हैव, राइट दिस इज कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज काउंसिल, कहा। और इस काउंसिल में मेंबर्स कितने होंगे, राइट, 4 मेंबर्स, दिस काउंसिल विल हैव 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं, राइट, फिलिप, यहाँ पे हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होगा बंगाल का, तो आपको पता है, देखो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस 1765 से 1772 तक खत्म किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, तो वही था, वही बन गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट दिस, ये कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यही एक फिल्म्स का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है, तो पहला नाम, राइट दिस, फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, सेकेंड इज क्लेवरिंग, क्लेवरिंग, third is Monson, and the fourth is Borwell, Borwell, these names are important, ठीक है ना, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एंड बोरवेल। अच्छा, लिखना है क्या एग्जाम में, नाम याद रखना है, फिलिप्स का रेडियो आता है, क्लेवर, क्लेवरिंग, मॉनसून पढ़ते ही हो ज्योग्राफी में, और ये क्या है, बोरवेल, ठीक है, याद नाम हो गया आपको, ठीक है, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एंड बोरवेल। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स भाई से तो हम फैमिलियर ही है। अब इसमें देखो क्या है, इस स्ट्रक्चर में भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है,
ठीक है, देखो द क्वेश्चन इज गवर्नर जनरल, ठीक है, अब यहाँ पे हाउ डिसीजंस विल बी टेकन, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस स्ट्रक्चर हाउ डिसीजंस विल बी टेकन, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, हाउ डिसीजंस विल बी टेकन, हाउ डिसीजंस विल बी टेकन, ठीक है। तो डिसीजंस विल बी टेकन ऑन अ मेजॉरिटी बेसिस, मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे, राइट, पॉइंट वन, ऑन अ मेजॉरिटी बेसिस, on a majority basis, decisions will be taken on majority basis, ठीक है, डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जा रहे हैं। जैसे मान लो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, फिल्म देखने जाना है, अभी नई नई फिल्म आई है साबरमती एक्सप्रेस, इसका देखने का मूड है, तो कहता है चलो यार चलते हैं देखने के लिए मूवी। अब डिसीजन किस पे आएगा, मेजॉरिटी बेसिस पे, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स, इसका मतलब अगर 3 मेंबर्स विल से यस, तो गवर्नर जनरल मूवी देखने जा सकता है। मेरी बात समझ गए ना, मेजोरिटी पे डिसीजन लेने का ही मतलब हुआ। मान लो इन केस, ठीक है, टू मेंबर्स आर सेइंग, टू मेंबर्स आर सेइंग यस एंड टू आर सेइंग नो, ठीक है, तो मामला अटक गया। अब ऐसी कंडीशन में कौन आएगा सामने, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वो कहेगा आई एम ऑल्सो सेइंग यस, तो मूवी देखने चलते हैं। मेरी बात समझ गया ना, तो अगर यहाँ पे 3-1 है, इन केस ऑफ 3-1, ठीक है, मान लो अगर 3 ने ये कह दिया कि मूवी देखने नहीं चलना है, साबरमती एक्सप्रेस देखने नहीं जाना है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स देख ही नहीं पाएगा ये फिल्म। प्रॉब्लम ये भी तो है। देखो अगर टाई होता है, वोट 2-2 होता है, तो उस केस में गवर्नर जनरल का वोट आया, लेकिन अगर यहाँ पे काउंसिल के 3 मेंबर्स ने कह दिया कि हमें साबरमती एक्सप्रेस नहीं देखनी है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स की इच्छा अधूरी रह जाएगी, वो नहीं देख पाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कंप्लेन करेगा ना कि यार देयर इज अ प्रॉब्लम इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कहेगा गवर्नर जनरल मैं यही नहीं डिसीजन ले पा रहा हूँ, दूसरों का डिसीजन मैं क्या लूंगा। तो अमूमन होता क्या था कि इसके काउंसिल के 3 मेंबर एक साथ हो जाते थे, ठीक है, तो फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम था, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। इन केस ऑफ इक्वल वोट्स गवर्नर जनरल का वोट वहां पे इफेक्टिव है, लेकिन इसको आप वीटो जैसी चीज थोड़ी ना कहोगे, इसमें तो आपको सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि इक्वल है, आप आ गए तो 2 से 3 हो गए बस, ठीक है। बट अगर काउंसिल के 3 मेंबर्स एक साथ हो जाए तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओके, तो लिख लो ना प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रॉब्लम इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही दोस्त था इसका, वॉरेन सिंह था, बोरवेल। जब वो कहता था मूवी देखने चलना है, ये कहता था हाँ चलेंगे, बाकी तीनों कहते थे नहीं जाना है। हर फ्राइडे को यही होता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, कहा यार ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आगे जाके चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ गए ना, सो राइट दिस प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर, यही है, दिस इज द प्रॉब्लम इन द स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, दिस इज द चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट। अच्छा एक और प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, आगे ये प्रॉब्लम दूर भी होगी, फिलहाल वो मैं प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम क्या है। अब देखो, ही इज व्हाट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे कौन है बॉम्बे का गवर्नर, यहाँ पे कौन है मद्रास का गवर्नर। अब मान लो बंगाल के गवर्नर जनरल ने बॉम्बे के गवर्नर से कहा, ठीक है, कि भाई ठीक है आगरा नहीं जाओगे तुम, तो ये क्या कहेगा बॉम्बे वाला, कहेगा क्यों नहीं जाऊंगा। बंगाल वाला क्या कहेगा, मैं बॉस हूँ, गवर्नर जनरल हूँ। कहा कहाँ के हो, बंगाल के ही हो ना, पूरे इंडिया के तो नहीं हो तुम। मेरी बात समझ लो, ये भी प्रॉब्लम आएगी। तुम्हारे सींग लगे हुए हैं, लेकिन उस सींग को सिर्फ बंगाल तक रखो, तो पूरे इंडिया के मामले में टांग मत अड़ाओ। तो कई बार इस तरह की भी चीजें आएंगी, तो इनको आगे चल के क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि किसका कार्य क्षेत्र क्या है। मेरी बात समझ गए, तो ये भी एक दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है रेगुलेटिंग एक्ट का, इज इट फ्री फ्रॉम द डिफिशियंसीज, यस और नो, इट्स नॉट फ्री फ्रॉम द डिफिशियंसीज, देयर आर मेनी चैलेंजेस हियर। पहला चैलेंज तो ये कि रेगुलेट कैसे किया जाएगा यही क्लियर नहीं है, यहाँ बेचारा गवर्नर जनरल डिसीजन कैसे ले ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे मामला अटक जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, तो राइट दिस पॉइंट, ओके, इफेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, राइट, देयर वर सो मेनी चैलेंजेस हियर, देयर वर सो मेनी चैलेंजेस हियर, ठीक है। इससे क्या किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी वाज मेड सुपीरियर,
राइट दिस, इसमें क्लियर हो गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी वाज नाउ सुपीरियर, बंगाल प्रेसिडेंसी वाज नाउ मेड सुपीरियर, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, एफर्ट्स वर आल्सो टेकन टू minimize corruption in East India Company. Efforts were also taken to minimize corruption in East India Company. Efforts were also taken to minimize corruption in East India Company. और करप्शन कैसे होगा? सैलरी बढ़ाओ, जैसा अब बताओ, गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी होती है 50,000, यहाँ पे जो वीडियो एडिट करता है उसकी सैलरी कितनी होती है? 50,000। पीसीएस ऑफिसर हो, सैलरी है 50-60,000, तो बाकी वो अपना मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो तरीका क्या है कि इफ यू विल गिव लिबरल सैलरीज, इफ विल इंक्रीज सैलरीज, तो द चैलेंज ऑफ करप्शन कुड बी मिनिमाइज। तो ये भी होगा, एट दिस इंक्रीजिंग सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स, इंक्रीजिंग सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स, सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स। नाउ एक और बात आएगी, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, ये भी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बट कब बना? व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, आंसर इज 1774। प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़ते हुए एकदम ध्यान रखना, यहां गलत होता है। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, but it was established in the year 1774. So highlighted, this is the information that Supreme Court was established by the Regulating Act of 1773, but it was established in the year 1774. 1774 में ये establish हुआ, right? Who was appointed as Chief Justice? So the answer is Sir Eliza Impe. Was Sir Eliza Impe was established as Chief Justice. Eliza Impe was Chief Justice. ठीक है ना? Got it? Eliza Impe. These are important informations. अब मैं टिप्स पे आपको गिनवाता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला, फर्स्ट टाइम इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वाज डन बाय द एक्ट ऑफ 1773, पहली चीज, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? इट ब्रॉट चेंजेस इन होम एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, करेक्ट और इनकरेक्ट? ओनली लिख दिया था मैंने, इनकरेक्ट, एग्जैक्ट। तो जब क्वेश्चन पढ़ो तो ओनली जहां है ना वहां पे थोड़ा ध्यान रखना। इट ब्रॉट चेंजेस इन बोथ होम गवर्नमेंट एंड इंडिया, बोथ। होम गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुए? रेज द क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स टू बिकम मेंबर्स ऑफ सीओपी एंड सीओडी। अब यहाँ पे वो डाटा नहीं याद करना है। दूसरा क्या हुआ वहां पे? ओके, दैट सीओडी, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट विल एस्टैब्लिश कंट्रोल, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सीओडी। पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी सीओडी, बट प्रॉब्लम क्या है? हाउ पार्लियामेंट विल कंट्रोल, दिस वाज नॉट मेड क्लियर, ये क्लियर नहीं। अब आज आ जाओ इंडियन गवर्नमेंट में, तो गवर्नर इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो बंगाल वाले गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी वाज मेड सुपीरियर, और स्ट्रक्चर क्या हो गया? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है रेगुलेटिंग एक्ट में? तो 1+4, ऐसे याद रखना, ऐसे लिख लो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में स्ट्रक्चर क्या है? 1+4, क्योंकि ये आगे कई बार ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो जब पहले से ही हमें पता होगा कि यहाँ ध्यान रखना है, तो आगे गलती हम नहीं करेंगे। यह स्ट्रक्चर क्या है? 1+4। 4 क्या है? काउंसिल मेंबर्स। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? मेजोरिटी से डिसीजंस हैं, तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम। व्हाट इट? सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से आता है? 1773। कब स्टैब्लिश होता है? 1774। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। गॉट इट? नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक इन दिस ग्रुप ए। So the second topic was Pitt's India Act 1784. Pitt's India Act 1784. अब इसको पुराने टॉपिक से आप रिलेट करो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और फिर आ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। क्यों आया? तो देखो, क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने लोगों के सारे कंसर्न्स को सॉल्व कर दिया? नहीं। सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया? नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद भी पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज नॉट मेड इट क्लियर कि
हाउ पार्लियामेंट इज एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ सीओडी। आपने तो ये क्लियर ही नहीं किया कि पार्लियामेंट सीओडी पे कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश कर रही थी। दूसरी चीज, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बताओ? इंडिया में आ रही है वो स्ट्रक्चर जो है। तो ये जो डिफिशियंसीज थी, जो लिमिटेशंस थी जिनके बारे में मैंने बताया था, इनको सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, तो राइट दिस, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट, it was introduced it was introduced to solve the deficiencies of regulating act 1773. It was introduced to solve the deficiencies of regulating act 1773। उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। और कैसे कमियां दूर होंगी? फिर से वही स्ट्रक्चर, अगेन द सेम स्ट्रक्चर। एक क्या हो गया? चेंजेस इन होम गवर्नमेंट, ठीक है, और चेंजेस इन इंडिया, चेंजेस इन इंडिया, changes in India, and the second is what? Changes in home government. So again there are two parts, changes in home government, changes in India। होम गवर्नमेंट में देखो प्रॉब्लम क्या था। अब सीधे मैं प्रॉब्लम से शुरुआत कर रहा हूँ। कहा गया था कि ये जो सीओडी है, इस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट विल एडमिनिस्टर इट्स कंट्रोल, बट हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड इट वाज नॉट मेड क्लियर। ये क्लियर नहीं था। नाउ दिस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट विल मेक इट क्लियर कि हम कैसे सीओडी को कंट्रोल करेंगे। ये क्लियर कर दिया कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक नई बॉडी बनाई जाएगी एंड दैट विल बी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट, दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दिस विल बी अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, this will be a new administrative body, there will be 6 members in this board of control, there will be 6 members in this board of control। और ये जो 6 members हैं, they are members of British Parliament, ठीक है, जिसमें वहां पे प्रिंसली प्रीवी काउंसलर्स, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, इन सबको मिला के बनेगा, ठीक है। टोटल कितने होंगे? 6, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन लोग होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। कौन कौन से मेंबर्स होंगे ये जानना जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? चांसलर ऑफ एक्सचेकर, प्रीवी काउंसलर्स और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहां का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ब्रिटेन वो था, क्योंकि अभी इंडिया का तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस ही नहीं है। इसका मतलब सिंपली वी कैन रिमेंबर दैट दीज 6 मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही अपने स्ट्रक्चर के अंदर एक बॉडी बना दी जिसको कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कहा इनका एक स्पेशल काम है, और वो स्पेशल काम क्या है? निगरानी करना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक्टिविटीज पे। तो क्या प्रॉब्लम दूर किया कि नहीं बताओ? हो तो गया प्रॉब्लम दूर, क्लियर। सो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। नाउ इट इज क्लियर दैट हाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट विल एस्टैब्लिश कंट्रोल। घुड़सवार आ गया। घुड़सवार कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले लगाम था, लेकिन लगाम लगाम किसके हाथ में? इट वाज नॉट क्लियर। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? लगाम किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। दिस मेड क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, इससे पार्लियामेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं? इज इट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? यस, दिस इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले लगाम लाया, फिर उस पर घुड़सवार बिठा दिया, दिस इज व्हाट? सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यही क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1773 से सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और 1858 में क्राउन बिकम्स द रूलर ऑफ इंडिया। तो क्या ये अचानक हो जाता है क्या कि सपना देखा क्राउन ने और कहा कि वी आर द रूलर ऑफ इंडिया? नहीं, उसकी तैयारी कब से चल रही है देख लो, 1773 से तैयारी चल रही है। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ जाते हैं। यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? चेंजेस इन इंडियन गवर्नेंस, ठीक है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसका बेचारे का दोस्त एक ही था, बोरवेल। इसको साबरमती एक्सप्रेस देखनी थी तो केवल यही तैयार था, बाकी 3 तैयारी नहीं थे, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये तीनों ग्रुप बना लेते थे एक साथ, कहते थे नहीं साबरमती एक्सप्रेस नहीं देखेंगे, ये राइट विंग का प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप बना लेते थे, और साबरमती एक्सप्रेस उसको देखनी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाई, चेंज करेगी। कैसे स्ट्रक्चर चेंज करेगी? देखो, अब कहेगी कि द न्यू स्ट्रक्चर हियर इज 1+3, द स्ट्रक्चर इज चेंज। नया स्ट्रक्चर क्या हो गया? 1+3। यानी यहाँ पे पहले 4 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल थे, अब वो कितने रह जाएंगे? 3 मेंबर्स हो गए, ठीक है, 3 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अब इस कंडीशन में क्या होगा?
इफ गवर्नर जनरल गेट द सपोर्ट ऑफ इवन वन, तो मूवी देखने जा सकता है। अब गवर्नर जनरल सपोर्ट कर दिया, बोरवेल ने कहा भाई चलते साबरमती एक्सप्रेस देखने। अब देखो यहां मामला तो बराबर बराबर हो गया ना, 2-2, लेकिन यहाँ 2 में से एक कौन है? गवर्नर जनरल है। तो किसकी ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी? गवर्नर जनरल की। यानी कि गवर्नर जनरल ने अगर किसी एक काउंसिल के मेंबर को भी अपने पक्ष में रखा तो वो डिसीजन ले सकता है। अच्छा, अगर गवर्नर जनरल ये भी नहीं कर पाएगा तो काहे का गवर्नर जनरल, रिजाइन करके वापस आ जाओ। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो ना। ठीक है, you can get even the support of one. So here the structure of Governor General and in his council was changed. Right this one. Governor General and his council, Governor General and his council structure was changed. Now it was 1+3. पहले क्या था ये? 1+4. 1+4. हम्म एक्चुअली देखो, देर इज वन थिंग एंड व्हाट इज दैट। देखो गवर्नर जनरल का पावर, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। 1773 में गवर्नर जनरल को मूवी देखने जाना है, 3 एक साथ हो जा रहे हैं तो जा नहीं पा रहा है। 1784 में गवर्नर जनरल का पावर थोड़ा और बढ़ेगा। जैसे जैसे आगे टाइम जाएगा किसका पावर बढ़ता चला जाएगा? गवर्नर जनरल का। और जब क्राउन रूल स्टैब्लिश होगा इंडिया में तो कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा क्राउन का? गवर्नर जनरल। गॉट योर आंसर, पता चल गया। ठीक है, कि यही तो है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, बॉर्नविटा पिलाया जा रहा है गवर्नर जनरल को, एक चम्मच पिलाया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, यहाँ पूरा बोतल ही डाल दिया उसके मुंह में। ठीक है, और आगे और पावरफुल बनाया जाएगा इसको। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी सोची समझी साजिश है, क्योंकि आगे चल के यही तो रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है, वायसराय होने वाला है। कंपनी की कहानी खत्म हो जाएगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का रोल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन? गवर्नर जनरल। तो इसी को तो पावरफुल बनाना है। इसीलिए देखो, colonial historians say that British never intended to establish political control over India. हमने कभी चाहा ही नहीं था, ठीक है, कि इंडिया में हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल हो। वी केम हियर एज ट्रेडर्स, ठीक है, वी वर डूइंग ट्रेड एंड कॉमर्स, वी वर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग लोकल पावर्स। और पता नहीं चला कब कहाँ और कैसे, जैसे प्यार हो जाता है वैसे ही भारत पे शासन हो गया अंग्रेजी सरकार का, पता ही नहीं चला। It was completely unintentional. Colonial historians will say that we never intended to be rulers of India, लेकिन कब हम रूलर बन गए हमें पता ही नहीं चला। कितना झूठ बोल रहे हैं, उनको खूब पता है कि वो रूलर बनने की तैयारी कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये क्लेम तो फॉल्स है ना, कि आप रूलर कब बन गए आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, आपको खूब पता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट हियर। गॉट इट? तो यही है पिट्स इंडिया एक्ट में, यही है। गॉट इट? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, इसके बाद एक एक्ट है, एक्ट ऑफ 1786। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। एक्ट ऑफ 1786 इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ अमेंडमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ अमेंडमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? ये एक्ट लाया गया कॉर्नवालिस के लिए। कॉर्नवालिस वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रिक्वेस्टिंग कॉर्नवालिस कि भाई इंडिया चले जाओ, इंडिया में जो भी प्रॉब्लम है तुम चले जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। कॉर्नवालिस वाज सेइंग यार इंडिया में जाके मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट स्टेट की तुम्हें प्रॉब्लम क्या है बेटा बताओ, हम सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे, लेकिन तुम जाओ इंडिया में, वहां पे करप्शन को दूर करो, सिविल सर्विसेज को डेवलप करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू। पता है ना, कॉर्नवालिस इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो कॉर्नवालिस बहुत इंटेलिजेंट था, जीवन में ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटर बनो कि गवर्नमेंट हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहे, भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओ। ठीक है, आपको अलग से सिफारिश नहीं करनी पड़े।
कॉर्नवालिस को ब्रिटिश गवर्नमेंट पूछ रही है इंडिया जाओ, कॉर्नवालिस कहता है मैं जाके क्या करूंगा इंडिया में, आप मुझे गवर्नर जनरल बना के भेज रहे हो इंडिया में, बट वहां का गवर्नर जनरल तो टूथलेस टाइगर है, ठीक है। तो लोगों ने कहा टूथलेस टाइगर, तो हम तुमको ओरिजिनल टाइगर बना देते हैं, तुम अपनी डिमांड तो रखो। कॉर्नवालिस ने कहा पहली डिमांड कि बेचारे गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर तो है ही नहीं, ओवर राइडिंग पावर्स है ही नहीं, उसको अपनी काउंसिल के मेंबर्स के ओपिनियन पे डिपेंड रहना है, ठीक है। वो साबरमती एक्सप्रेस नहीं देखने जा पा रहा है, ठीक है। कहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मुझे ओवर राइडिंग पावर्स चाहिए, ठीक है। जो काउंसिल के मेंबर्स हैं, गॉट इट, उनके ओपिनियन को भी मैं ओवरराइड कर सकूं, इतने पावर्स चाहिए, वीटो चाहिए मुझे। गवर्नमेंट ने कहा ले लो वीटो, दिया तुमको ओवरराइडिंग पावर्स, ठीक है। कॉर्नवालिस ने कहा एक काम और करना पड़ेगा, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ बोथ दीज टू पावर्स शुड बी यूनाइटेड, दोनों को एक करो, क्योंकि इंडिया में जगह जगह छोटे छोटे वॉर्स चल रहे हैं, वहां पे भी इफेक्टिव डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ही रेज टू डिमांड्स, पहला डिमांड था कि गवर्नर जनरल जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, 1+3, and he is saying that governor general should get overriding powers over his council members, over his council members, overriding powers over his council members, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के पास क्या होना चाहिए, overriding powers over his council members। overriding power क्या है, अब आप समझ गए ना, कि सिंगल हैंडेडली गवर्नर जनरल नाउ वाज कैपेबल टू टेक द डिसीजन, अब ये सिंगल हैंडेडली डिसीजन ले सकता था, ठीक है। ये साबरमती एक्सप्रेस देखने जाने की इच्छा है, कहेगा मैं भी जाऊंगा और तुम सबको लेके चलूंगा और जबरदस्ती बिठा के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। साबरमती एक्सप्रेस इस मूड में आ चुका है, इस मूड में आ चुका है कॉर्नवालिस, ठीक है ना। तो बताओ, अब एक बात बताओ, गवर्नर जनरल की पावर पहले से ज्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये सेंट्रलाइजेशन है कि नहीं, सेंट्रलाइजेशन। सारे एक्ट में देखोगे कि गवर्नर जनरल की पावर धीरे 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 बढ़ती जा रही है। सो हियर वी सी दैट गवर्नर जनरल बिकम्स मोर पावरफुल एंड दिस इज व्हाट, एफर्ट्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ये है एफर्ट टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। दूसरा डिमांड क्या है कॉर्नवालिस का, राइट दिस, गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ, both these two offices should be united, both these two offices should be united, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, both these two offices should be united, दोनों को एक कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा ये भी डिमांड मान लिया, कहा ठीक है अब मैं चलता हूँ, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद वो आ गया कॉर्नवालिस इन इंडिया। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है, याद करो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड। अब ऐसी चीजों को लिंक करके भी आपको याद रखना है, 1786 टू 1793, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस इन इंडिया ना। तो अब याद रहेगा ना, 1786 एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, कॉर्नवालिस 1786 टू 1793, ठीक है।